ایسی کیفیات بن جاتی ہیں بعض اوقات. نہیں، ہم مسلم ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جو ہمیں باتیں بتائی جاتی ہیں عقائد کی، یہ برحق ہیں. جو کچھ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ حقیقتاً ایسے ہونا ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے. تو اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سجدے کے لیے بلایا جائے گا. قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون، جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جو دنیا میں اپنی جبین نیاز کو رب بارگاہ بے نیاز میں نہیں جھکاتے تھے، فرمایا وہ کوشش کریں گے بہت زیادہ، کیونکہ اس دن تو ہر بندہ تڑپ رہا ہوگا. جب بلایا جائے گا نا سجدے کے لیے، سارا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بڑے خوش ہوں گے کہ رب نے سجدے کے لیے بلایا. ساری مخلوق دوڑے گی رب کو سجدہ کرنے کے لیے، کیونکہ اب اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں. سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں، ہر چیز سامنے آنکھوں کی آ چکی ہے، اس لیے ہر انسان دوڑے گا سجدے کے لیے. لیکن قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون، جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ آخرت میں بھی سجدہ نہیں کر سکتے. وہ آخرت میں بھی سجدہ نہیں کر سکتے. کیا ہوگا؟ مفسرین کرام نے لکھا ان کے کمروں میں پشتوں میں سریا نما چیز پیوست کر دی جائے گی، وہ زور لگائیں گے، جھکنا چاہیں گے بھی تو جھک نہیں سکے. کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں شرم کی وجہ سے جھک جائیں گی. ترہقہم ذلہ، ذلت، ندامت، شرمندگی اور رسوائی ان پر سوار ہو جائے گی، مسلط کر دی جائے گی. اور کیا کریں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے صدا آئے گی وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. فرمایا کہ آج تم سجدہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ دنیا میں صحیح سلامت تھے، تندرست تھے، قوی تھے، توانا تھے، اور تمہیں اللہ کی پاک بارگاہ میں جھکنے کے لیے بلایا جاتا تھا. تو صحیح سلامت موقع بھی تھا، چانس بھی تھا، وقت بھی تھا، سب کچھ تھا، زندگی بھی تھی، حیات بھی تھی، صحت بھی تھی، شباب بھی تھا، یہ ساری نعمتیں تھا کہ صحیح سلامت ہو کر تم اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف نہیں آئے، سر نہیں جھکایا، لہذا آج بھی تم اب اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکا سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی سزا ہے کہ اس وقت انسان کا اگر عالم تصور میں وہ منظر تو لائیں کہ کیا حالت اور کیفیت ہوگی کہ رب سجدے کے لیے بلا رہا ہے اور ہم سجدہ کرنا چاہ بھی رہے ہیں اور سجدہ نہ کر سکیں. تو اس وقت کس قدر ندامت، شرمندگی، رسوائی، ذلت. اس لیے نماز کا معاملہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور نماز کو عبادات میں سب سے اہم ترین چیز قرار دیا گیا ہے. اور بار بار یہی کہا گیا ہے کہ جو نماز میں سستی کرے گا وہ باقی کاموں میں بھی، دین کے باقی کاموں میں بھی سستی کرے گا. جو نماز میں چاق و چوبند ہوگا، نماز میں ایکٹیو ہوگا، تو وہ باقی چیزوں میں بھی ایکٹیو ہوگا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ ہمیں اکثر یہ مشاہدے میں ملتی ہے بات، جو نماز سے دور ہے وہ دین کی باقی چیزوں سے بھی دور ہے. جو نماز پڑھتا رہتا ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ روحانیت کے اثرات اور نورانیت کے اثرات اور دین کی ایک رغبت، ایک جذبہ، وہ کیفیات رہتی ہیں. بہرکیف یہ ابتداً ذرا شروع میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے، چونکہ جو چیز سیکھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو سیکھنے کی کیا اہمیت ہے، تو یہ سیکھنا ہمارے لیے کس قدر فائدہ مند ہے اور نفع بخش ہے اور مفید ہے. اس لیے میں نے ابتداً یہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی. تو آئیے، تو نماز کو صحیح کرنا ہے اور نماز کی برکات کو حاصل کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں وضو، الطہارہ، وضو کو سیکھنا ہوگا. وضو کے بارے میں ہم کچھ چیزیں سیکھ چکے ہیں پہلے. وضو کے فرائض، میں وضو کے فرائض کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ ہمارا، ہم پڑھ چکے ہیں وضو کے فرائض پہلے، تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ ایک ربط قائم ہو جائے. لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے ایک اچھی چیز ہے اور ایک سمجھ لیں کہ لطف اندوز ہونے کے لیے میں ان بچوں کو بلاتا ہوں، چند بچوں کو جو میرے پاس پڑھ رہے ہیں اور وضو کے مسائل سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آ کے پڑھنے سے پہلے آپ کو وضو کے فرائض سناتے ہیں. جی آپ آ جائیں گے، ریان صاحب اور خضر صاحب، صوبان صاحب، شاہزیب صاحب اور عطا. جلدی آؤ شاہباز، دیکھ رہے ہو. ہاں جی بتاؤ، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ اونچی آواز سے، وہ آگے تک، میری آواز آ رہی ہے نا، آگے تک جاتی ہے، آپ کی آواز بھی جانی چاہیے. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. وضو کا پہلا فرض کیا ہے؟ پورے چہرے کو دھونا. سب کی آواز نہیں آ رہی، بولے. وضو کا پہلا فرض کیا ہے؟ پورے چہرے کو دھونا. جی. وضو کا دوسرا فرض کیا ہے؟ شاباش، دونوں ہاتھوں کو یا دونوں بازوؤں کو. وضو کا تیسرا فرض؟ چوتھے حصے کا مسح. کس کے چوتھے حصے کا؟
सर के चौथे हिस्से का मसा करना। जी वुजू का चौथा फर्ज क्या है, ऊंची आवाज से बोल दो। दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। दोनों पैरों को टखनों समेत टखनों समेत धोना। चलो शाबाश। मैंने कहा था मैं एक एक करके बुलाऊंगा, कहते जी एक एक करके ना मैं बुलाना हमें शर्म आती है, मैं इकट्ठे बुलाऊंगा। चलो जी वुजू के फराइज तो आपने सीख लिए बच्चों से। हम इसके बाद वुजू की सुन्नत मैं दोहरा देता हूँ। वुजू का पहला फर्ज, फराइज फर्ज की जमा है। फराइज से मुराद वो चीजें लाजमी और जरूरी जिसके बगैर वुजू होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ये मस्ट है, कंपलसरी है। यानी वुजू करने के लिए ये चार चीजें तो जरूरी है। पूरे चेहरे को धोना, दोनों बाजुओं को कोनियों समेत धोना। कोनियां भी धोने में शामिल है। बाद रात कोनियां खुश्क छोड़ देते हैं तो इससे वुजू नहीं होता, याद रखें। फर्ज की अदायगी में अगर कमी रह गई तो वुजू नहीं होगा। ठीक है, कोनियां ये शामिल है धोने में, तो कोनियों से ऊपर तक धोना चाहिए। तो वुजू का दूसरा फर्ज है दोनों बाजुओं को कोनियों समेत धोना। और वुजू का तीसरा फर्ज है सर के चौथे हिस्से का मसा करना। और वुजू का चौथा फर्ज है दोनों पैरों को या दोनों पाँव को टखनों समेत। टखना पाँव के साथ उभरी हुई हड्डी है, उसको टखना बोलते हैं। तो दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। टखना भी धोने में शामिल है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप भी मेरे साथ मिलके बोले। जी वुजू का पहला फर्ज क्या है? काफी रिलैक्स किया मैंने आपको, काफी देर से मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, अब आप जरा बोले। जी वुजू का पहला फर्ज क्या है, सारे बोले। वुजू का पहला फर्ज पूरे चेहरे को धोना। वुजू का दूसरा फर्ज बोले दोनों बाजुओं को। वुजू का दूसरा फर्ज। जी वुजू का तीसरा फर्ज सर के चौथे हिस्से का। वुजू का तीसरा फर्ज सर के। वुजू का चौथा फर्ज दोनों पैरों को। जी सिर्फ मर्द हज़रात बोलेंगे। वुजू का पहला फर्ज क्या है? सारे बोले। वुजू का पहला फर्ज क्या है? वुजू का दूसरा फर्ज क्या है? देख रहा हूं कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, सारे बोले। वुजू का पहला फर्ज क्या है? वुजू का दूसरा फर्ज क्या है? दोनों बाजुओं को। वुजू का तीसरा फर्ज सर के चौथे हिस्से का मसा करना। सर के चौथे हिस्से का। और वुजू का चौथा फर्ज दोनों। जी अब मर्द जरा खामोश रहे, खवातीन बोलेंगी। जी वुजू के पहला फर्ज क्या है? माशाल्लाह इधर बात ज्यादा है, इधर जज्बा भी ज्यादा है। ठीक है, इससे हमें सबक सीखना चाहिए। जी वुजू का पहला फर्ज क्या है? वुजू का दूसरा फर्ज। जी वुजू का तीसरा फर्ज। जी वुजू का चौथा फर्ज। माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह अकबर। तो ये थे वुजू के फराइज। पूरा चेहरा, लंबाई में इसकी मिकदार सर के बालों के उगने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और चौड़ाई में एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये सारा चेहरा कहलाता है। इसमें अगर बाल की नोक के बराबर भी हिस्सा खुश्क रहा तो हमारा वुजू नहीं होगा, फर्जदानी होगा। फर्जदाना हुआ तो वुजू नहीं होगा, वुजू ना हुआ तो नमाज नहीं होगी। ठीक है, और दोनों बाजू की वजाहत आ गई। उंगलियों के पोरों से लेकर या कोनियों के ऊपर तक ये सारा हिस्सा धोना फर्ज है। और धोने का मतलब ऐसे सिर्फ पानी डाल देना नहीं है चेहरे पे, या मलना उसमें शामिल है। दो बूंद, दो कतरे कम से कम हर हिस्से पर बह जाएं और ऊपर आप हाथ फेरें कि ताकि अच्छी तरह जिस्म की जिल्द तक जो है पानी पहुंच जाए। और सर के चौथे हिस्से का मसा करना, पूरा तरीकाकार तो यही है, पूरा सर का मसा करना। वो आगे हम पढ़ रहे हैं, वुजू की सुन्नतों में आएगा बयान, लेकिन अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं सर के चौथे हिस्से का मसा करना, ये फर्ज है। सर का चौथा हिस्सा कितना है, उसकी फुकाने मिकदार ये बयान की, हर बंदे की जितनी पेशानी की मिकदार है उतनी उसके सर के चौथे हिस्से की मिकदार है। यानी अगर कोई पेशानी के मिकदार इतना ऐसा 4 उंगलियों के बराबर अगर सर का मसा कर लेता है, मसा का मतलब होता है गीला हाथ तर करके गीला करके फेरना। ठीक है, ये मसा कहलाता है। तो हाथ गीला करके अगर पेशानी के मिकदार या 4 उंगलियों की मिकदार अगर कोई सर पे फेर लेता है तो उसका फर्ज अदा हो जाए, उसका फर्ज अदा हो जाएगा। और दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। ठीक है, ये 4 तो वो चीजें हैं जो वुजू है, मस्ट, वुजू के लिए मस्ट है, लाजमी और जरूरी है। उसके बाद अगला मरहला वुजू की सुन्नत है। इसमें हम वुजू का मुकम्मल तरीका कार सीखते हैं। जो मर्द होते हैं उनकी दाढ़ी होती है, दाढ़ी कितनी गिल्ली, अगर दाढ़ी के बाल सूखे रह जाएं
उसके बारे में बताएं। चले मैं अभी इसका जवाब दे देता हूँ। वैसे आना था अभी सुनता मैं इंग्लिश पढ़ना था, अभी दाढ़ी का खलाल करना जाना था, मैंने वहाँ से करना आप कहते हैं तो कि अगर चेहरा हाँ मैं वो उसका दाढ़ी दो तरह की, एक खफीफ दाढ़ी है, हल्की दाढ़ी, एक घनी दाढ़ी कहलाती है। खफीफ दाढ़ी वो होती है जिससे जिल्द नजर आती है, ठीक है, उसमें जिल्द तक पानी पहुंचाना जरूरी है। और जो घनी दाढ़ी है जिसमें जिल्द नजर नहीं आती, उसके जिल्द तक पानी पहुंचाना जरूरी नहीं है, उसके जो जाहिर बाल हैं इनको गीला कर लेना ही काफी है, ठीक है। उसमें आगे हम पढ़ेंगे दाढ़ी का खलाल करना ये सुन्नत है। वो खलाल इसलिए रखा गया, हाथ गीला करके यूं आप दाढ़ी में फेरेंगे तो ये जो जाहिर बाल हैं ये गीले हो जाएंगे, ये काफी है, जिल्द तक पानी पहुंचाना जरूरी नहीं। लेकिन बाद रात की दाढ़ी बिल्कुल खफीफ होती है, हल्की होती है, बाल जरा फासले से होते हैं तो और जिल्द नजर आती है, तो उनके लिए हुक्म यह है कि वो जिल्द तक पानी पहुंचाए, उनके लिए जिल्द तक पानी पहुंचाना जरूरी है। लेकिन घनी दाढ़ी जो है उसके लिए हुक्म यह है कि सिर्फ जो जाहिर बाल हैं जो लटक रहे हैं, जाहिर नजर आ रहे हैं, उनको गीला करना और ऊपर हाथ गीला फेरना, पानी पहुंचाना ये काफी है, फर्ज अदा होगा। तो वुजू की सुन्नत है। सुन्नत की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। आज चूंकि हमारे क्लास में इतना टाइम गुंजाइश नहीं होती, इसलिए इस पर कब इंशाल्लाह पूरा टॉपिक रख के इस्लाम में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम व मर्तबा, इस पर कभी फिर तफसील से बात होगी। लेकिन अब चूंकि हम वुजू की सुन्नतें पढ़ने लगे, चंद चीजें हमें पता होनी चाहिए। याद रखें, असल इबादत फर्ज है। असल इबादत क्या है? फर्ज है। फर्ज में जो कमी रह जाती है, जो नक्स रह जाता है, वो सुन्नत पूरा करती है। फर्ज, इसको मजीद आसान कर दूं, फर्ज को सुन्नत कमाल अता करती है। फर्ज को जो कमाल मिलता है वो किससे मिलता है? सुन्नत से। हम फराइज के बाद सुन्नतें क्यों पढ़ते हैं? कि फराइज असल इबादत है। असल इबादत कौन सी है? फराइज। उनमें जो कमी रह जाती है, सुन्नतें इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो कमी पूरी हो जाए। वो नक्स अदायगी में कोई कमी बेशी होगी तो वो सुन्नतों से पूरी हो जाती है। ये सुन्नत का कमाल है। दूसरी बात, अहम बात, वो ये है सुन्नत के हवाले से कि आप सुन्नत के बगैर कोई इबादत भी सर अंजाम नहीं दे सकते। सुन्नत के बगैर कोई इबादत भी सर अंजाम नहीं दे। सुन्नत किस चीज को कहते हैं? सुन्नत हुजूर की अदाओं का नाम है। हुजूर ने जिस अमल को इख्तियार किया वो सुन्नत बन गई, वो शरीयत का हुक्म बन गया। हुजूर की अदाएं, कुरान ने, हम तो सुन्नत का लफ्ज बोलते हैं ना, कुरान ने सुन्नत का लफ्ज यूज नहीं किया, कुरान ने हिकमत का लफ्ज यूज किया। हुजूर के अमल के लिए, हुजूर की अदाओं का लिए सुन्नत का लफ्ज यूज नहीं किया। कुरान कहता है हिकमत, कि हुजूर का अमल जो है वो हिकमत है। क्या मतलब? कि हुजूर कोई भी हुक्म इरशाद फरमाएं या कोई भी अमल करके दिखाएं तो हुजूर की हर अदा, हर अमल हिकमतों से भरा हुआ है। हुजूर का हर अमल हिकमतों से भरा हुआ है। तो इसलिए सुन्नत फर्ज को कमाल अता करती है। सुन्नत के जरिए फर्ज में जो कमी रह जाती है वो पूरी होती है। और सुन्नत के जरिए हम कोई इबादत भी सरअंजाम नहीं दे सकते। कुरान ने तो जस्ट इतना कहा, वर करो, रुकू करो। हमें क्या पता रुकू क्या होता है? कुरान ने कहा वस्जुदू, सजदा करो। क्या पता सजदा क्या होता है? हम अगर डिक्शनरी खोल के सजदे का माना देख लें तो माना यही है झुकना। कितना झुकना, कैसे झुकना? रुकू का माना भी झुकना है। डिक्शनरी से हम तो माना मालूम कर सकते हैं। हमने डिक्शनरी खोली, रुकू का माना देखा, रुकू का माना झुकना। कितना झुके, कैसे झुके, ये किसने बताया? ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कुरान ने कहा अकीमु, अकीमु सल्ला, नमाज कायम करो। कैसे नमाज कायम करें? नमाज शुरू कैसे करें? क़याम क्या होगा, खड़े होकर क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है, हाथ कैसे बांधने हैं, ये सारा जो तरीकाकार हमें कहाँ से मालूम हुआ? सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम। वुजू को ही ले लें आप, कुरान ने तो जो वुजू बयान किया वो तो वही जो आपने अभी सीखा है। चेहरा धोना, बाजू धोना, मसा करना और पाँव। तो क्या हम सिर्फ इतना वुजू करते हैं? बोले नहीं। हम तो पहले नियत करते हैं। अभी हम पढ़ने लगे, आइए जरा देखते हैं हम वुजू कैसा करते हैं। और ये जो हम वुजू करते हैं ये हुजूर की सुन्नत की रोशनी में करते हैं। और जो फर्ज वुजू है वो भी उतनी देर तक कामिल नहीं हो सकता जब तक हम सुन्नत का सहारा न लें। हम फर्ज को उतनी देर तक अदा नहीं कर सकते, ये जुमला याद रखें, जब तक हम सुन्नत रसूल का सहारा नहीं ले लें। गोया रब की पाक बारगाह में मोहब्बत, कुर्ब, मारिफत का दर्जा पाना है तो हुजूर की सुन्नतें ही वो जरिया हैं जो हमें रब के करीब कर सकती हैं, जो रब की मोहब्बत अता कर सकती हैं और उसकी मारिफत अता